Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. Today we are starting with the sixth part of the chapter Introduction to Partnership for 12th Commerce Accountancy. So in previous part we have already calculated and explained almost 11 illustrations. Okay, so just see the past two parts, that is part number 4 and 5, where I have discussed illustration number 1 to illustration number 11. All are discussed in that particular part. So please go, if you haven't seen it, please go and check on the YouTube channel. Now we are starting with the most important questions for the exam perspective. So we are starting with the 3 marks question that is already given in your exercise. So starting with the first example of the exercise, question number 3. So we are starting with the question number 3, where we are starting with the first example, example number 1. Okay, so what was written in the example? A partner withdraws identical amount at the end of each month from the firm. At the end of the total annual drawing is 12,000. 12% per annum interest is chargeable on drawing. Determine the amount of interest on drawing for the year. Okay, so just very simple example. We have to apply the formula I is equal to PRN upon 100. Now P, that means your principal amount. So here the principal amount is given 12,000 rupees, but the amount is given for the whole year. That means we need to divide it by 12. So we will get per month drawing, that is 1,000 rupees. Clear? Then second is R, that means your rate of interest. In that particular sum, the rate of interest is given 12%. So very simple, 12% rate of interest was given, and stands for number of years or number of months. So here he is withdrawing the identical amount at the end of each month. That means if we are using the word at the end of each month, that means we have to use in formula 66 divided by 12. Now just calculate this. I is equal to PRN upon 100. P, that means your 1,000 rupees, multiply by R, that means 12%, multiply by 66 divide by 100 into 12. Simple. 12 gets cancelled, this 2 will get cancelled, you will get the answer of 660 rupees. So this is your annual drawing for this particular year. Okay, this is your first example. Let's understand this particular sum in हिंदी. अब इस सम में क्या दिया है, एक पार्टनर है जो एवरी बाय एंड ऑफ द ईयर टोटल 12,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है एज अ ड्राइंग. तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट दी पी वैल्यू. पी वैल्यू क्या आ जाएगी, 12,000 डिवाइड बाई 12. बाई 12 क्योंकि 12 महीने होते हैं, तो 12,000 डिवाइड बाई 12 कर दिया तो हमें 1,000 पर मंथ मिल गया. सो पर मंथ वैल्यू हमें निकालनी है, वो हमें मिल गई 1,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12%, तो वो हमने ले लिया 12%. नाउ एन वैल्यू में हमने 66 डिवाइड बाई 12 क्यों लिया, क्योंकि इस सम में ऐसा बोला गया था कि दैट पर्टिकुलर पार्टनर्स विड्रॉ द अमाउंट एट एंड ऑफ द ईयर. जब एंड ऑफ द ईयर आएगा, ओके, इफ एंड ऑफ द ईयर आएगा तो हम क्या करेंगे, 66 डिवाइड बाई 12 लेंगे. अगर एट द बिगिनिंग आ जाएगा, एट द बिगिनिंग, तो इसकी जगह पे हम क्या ले लेंगे, इसकी जगह पे हम ले लेंगे 78 डिवाइड बाय 12. सिंपल. तो हमने एट दी एंड पूछा है, एंड ऑफ द ईयर दैट मीन्स एंड ऑफ द मंथ, तो हमें क्या लेना है, 66 डिवाइड बाय 12. ओके, सो 1,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 66 डिवाइड बाय 12 इंटू 100. सो यू विल गेट दी आंसर. ये 2 0 चले गए, 12 कैंसिल हो गए. 66 मल्टीप्लाई विथ 10, 660 रुपीज़. ये उसका क्या आ गया, interest on drawing. This is your first example. Second example, example number 2.
Now here, Amruta Divya are the partners of a partnership firm. The capital ratio is 3:2. अब 3:2 कैपिटल रेशियो दिया है, उसका हमें यहाँ पे कोई काम लगेगा? कोई काम नहीं लगेगा। हमें क्या ढूंढना है? प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ही ढूंढना है। तो सब में क्या ढूंढेंगे? पहले प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो दिया है कि नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो कौन सा ले लेंगे? 1:1। दैट मीन्स इन इक्वल प्रपोर्शन हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पूरा प्रॉफिट। सिंपल। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है? अमृता इज टू बी पेड 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन. What amount will be received by Amrita if the profit for the year is 96,876? So profit for the year क्या है? Profit for the year is 96,876 रुपीज. अब सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें कमीशन देना है अमृता को एट 8%. So we have to give commission at 8% to अमृता. अब ये जो कमीशन देना है वो कैसे देना है? आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन. मतलब इसमें वो वाली फॉर्मूला आ जाएगी. अगर हमें कमीशन फाइंड करना होगा तो इसमें क्या फॉर्मूला आ जाएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस कमीशन. ओके, सिंपल. तो ये यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला हमने क्यों अप्लाई करी? बिकॉज आफ्टर वाला वर्ड दिया हुआ है. अगर आफ्टर के जगह पे बिफोर दिया होता तो क्या करते? प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कमीशन परसेंटेज डिवाइड बाय 100. इसमें प्लस कमीशन वाला सिंबल नहीं आता. तो अभी प्रॉफिट कितना है फर्म का? प्रॉफिट इज 96,876 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 8% डिवाइड बाय 100 प्लस 8. अब इसमें क्या वैल्यू आ जाएगी? 96,876 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 108. ये इसका टोटल हो गया 100 प्लस 8, दैट मीन्स 108. ओके, कैलकुलेट दिस. 96,876 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 108. क्या गया आंसर? 7176 रुपीज़. सिंपल. तो हमें कमीशन मिल गया कि अमृता को 7176 रुपीज़ का कमीशन मिलेगा. दिस इज द फर्स्ट वन. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द एक्चुअल प्रॉफिट विच इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द पार्टनर्स. अब ये जो टोटल प्रॉफिट था तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ढूंढेंगे. टोटल अमाउंट कितनी थी? 96,876 माइनस 7176. फाइंड आउट करो. 96,876 माइनस 7,176. आंसर क्या आ गया? 89,700. नाउ दिस प्रॉफिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 2 पार्टनर्स. ओके, कौन कौन से पार्टनर्स हैं यहाँ पे? एक है पार्टनर अमृता और एक है पार्टनर दिव्या. तो ये जो पूरा प्रॉफिट होगा तो ये 2 पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा. देन फाइनली क्या पूछा है एग्जाम में? व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय अमृता इफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 96,876. सो सिंपल, अमृताज प्रॉफिट. यहाँ पे हम लिख लेंगे अमृताज प्रॉफिट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसका जो प्रॉफिट आएगा वो तो लेना ही है, प्लस उसे क्या मिल जाएगा? कमीशन, जो हमने यहाँ पे ढूंढा है. तो उसका सबसे पहले प्रॉफिट कितना आएगा? हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई 89,700 डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. इसको डिवाइड बाय 2 पार्टनर से कर देंगे क्योंकि कौन सा रेशियो लेना है? 1:1 इक्वल प्रपोर्शन में सेंड करना होगा. सो 44,850 प्लस उसका कमीशन कितना आया है? 7,176. तो इसको टोटल कर दो. आंसर क्या आ गया? 52,026 विल बिकम योर आंसर. तो बाय एंड ऑफ द ईयर अमृता को टोटल प्रॉफिट में कितना शेयर मिलेगा? 52,026 रुपीज़ का शेयर मिल जाएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3.
Vismay, Abhijit and Kunal are partners sharing profit and loss in the proportion of 3:2:4. There are three partners. The name of the partners are, one is Vismay, second partner is Abhijit, okay, and the third partner is Kunal. तीन पार्टनर हो गए, विस्मय, अभिजीत और कुणाल. नाउ व्हाट इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? सब में दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:2:4. 3:2:4. अब सिंपल इसको कैलकुलेट करो. 3 + 2 कितना हुआ? 5. 5 + 4 दैट मीन्स 9. तो टोटल प्रॉफिट शेयरिंग में 9 डिवीजन आएंगे. डिवाइड बाय हम क्या करेंगे? 9 करेंगे. तो अगर सिंपल वर्ड में लिखना हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 डिवाइड बाय 9, 2 डिवाइड बाय 9 एंड 4 डिवाइड बाय 9. दिस आर देयर एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये मिल गया सिंपल. नेक्स्ट, अब क्या लिखा है? मैनेजर इज टू बी पेड 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट बट आफ्टर द डिडक्शन ऑफ हिज सच शेयर द प्रॉफिट ऑफ अभिजीत इज 30,000. तो इसमें सिंपल ऐसा दे दिया है कि प्रॉफिट डिवीजन करने के बाद अभिजीत का जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना है? 30,000 आ रहा है. 30,000. तो दैट मीन्स 2/9 शेयर में उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है. और हमें मैनेजर को कितना कमीशन देना है? मैनेजर का कमीशन फाइंड आउट करना है एट 10% वैल्यू. हाउ मच वैल्यू? 10%. अब इसमें देखो नेक्स्ट क्या आ रहा है? द शेयर ऑफ द प्रॉफिट इज 30,000, डिटरमाइन द कमीशन ऑफ द मैनेजर. सिंपल एग्जाम्पल, अगर हमें 2/9 का रेशियो मिल गया है 30,000, 2/9 वी आर गेटिंग रुपीज़ 30,000. देन ऑन 1 हाउ मच? आप ये प्रपोर्शन में करो तो भी आपका आंसर आ जाएगा. ये एक सिंपल मेथड है. क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 30,000 डिवाइड बाय, इसमें क्या आ जाएगा? 1 डिवाइड बाय 2/9. ये एक पहला कैलकुलेशन आ जाएगा. ओके करके देखते हैं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय, इसमें 2/9 है. तो अब जब हमें डिनोमिनेशन में 2/9 लिखना होगा तो ये 9 जो डिनोमिनेशन है वो क्या? एज पर द रूल ऑफ मैथ्स ऊपर चला जाएगा. तो डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9. पता चला? फिर से एक बात दिखाता हूँ. 30,000 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1 इनटू, अब हमें कौन सा डिवीजन में लेना है? 2 डिवाइड बाय 9 डिवीजन में लेना है. पर रूल क्या है? 2 तो यहाँ पे आ जाएगा पर 9 इसके भी डिवीजन में है, तो ये जो डिनोमिनेटर है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा. ये मैथ्स का रूल है, ये हमें देखना है, फॉलो करना पड़ेगा. देन सिंपल 15,000 यहाँ पे आ जाएगा. 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 9 वी विल गेट द आंसर ऑफ 1,35,000 रुपीज़. हो गया? करके देखते हैं. 15,000 मल्टीप्लाई बाय 9, 1,35,000 आ गया. नाउ सो व्हाट इज देयर रेशियो? अब हमें मैनेजर को कितना रुपीज़ देना है? एट 10% देना है. सो सिंपल, कमीशन ऑफ मैनेजर इज इक्वल टू 1,35,000 इंटू 10%. सिंपल आ गया. 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 10%. आंसर मिल गया 13,500. सो दिस इज योर आंसर. सिंपल 13,500 रुपीज़ इज कमीशन ऑफ अ मैनेजर. ओके, इससे डिफिकल्ट सम नहीं आता है एग्जाम में. नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4. The profit and loss sharing ratio of Rajkumar, Kaushik and Sharma is 15:10:9. So ultimately there are 3 partners. पार्टनर्स के नाम क्या है? राजकुमार. नाम कोई भी हो, हमें तो सिंपल एक कैलकुलेशन ही करना है. कोई भी नाम आ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है. फर्स्ट इज राजकुमार, सेकेंड इज कौशिक,
एंड नेम ऑफ द थर्ड पार्टनर इज शर्मा. शर्मा इज द नेम. देखो शर्मा, 3 पार्टनर आ गए. सिंपल. राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा आर दी पार्टनर्स. देन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 15:10:9. तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, हम ये 3 का टोटल कर देते हैं. 15 + 10 25, 25 + 9 दैट इज 34. तो हमें टोटल मिल गया 34. तो टोटल 34 में डिवाइड होगा. जो भी प्रॉफिट आएगा उसको कितने में डिवाइड करेंगे, 34 में डिवाइड करेंगे. 15 शेयर इसको मिल जाएंगे, 10 शेयर इसको मिल जाएंगे और 9 शेयर इनको मिल जाएंगे. तो ऐसे इसको सिंपल लिखना है तो 15/34 लिख सकते हैं. इसको लिख सकते हैं 10/34 और इसको क्या लिखेंगे शर्मा को, 9/34. ओके, 3 मिल गए, 3 रेशियोज आ गए. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. अगर कैपिटल रेशियो होता तो हम क्या करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके दे देते, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही फाइंड आउट करना है. देन इन द सम इट वाज रिटन द टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर फॉर द फर्म इज 68,000. टोटल प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इज ₹68,000. नेक्स्ट क्या लिखा है, डिटरमाइन द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर्स. अब ये सम जैसा करने जैसा तो है ही नहीं. टोटल प्रॉफिट दिया है, तीनों का रेशियो दे दिया है, अब आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. वेरी सिंपल एग्जाम्पल. ये तो 3 मार्क में पूछा भी नहीं जाएगा, ये हम MCQ के अंदर डाल सकते हैं. राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा, 3 पार्टनर्स आर देयर. उनके नाम लिख दिए, सबके सामने उसकी वैल्यू लिख दी. व्हाट इज़ द वैल्यू, 68,000. अब ये पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 15/34. तो हम लिख देंगे 15/34. नेक्स्ट पार्टनर इज कौशिक, तो उसका 68,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 34, ये आ गया. और थर्ड पार्टनर इज शर्मा, 68,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 34. बस इन तीनों की वैल्यू निकाल दो, आपका आंसर हो जाएगा. फर्स्ट का देखो, 68,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 34, क्या आंसर मिला, 30,000 रुपीज़. राजकुमार को कितने रुपए मिल रहे हैं, 30,000. ये आपका पहला आंसर आ गया. सेकेंड, 68,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 34, तो इसमें कितना आंसर मिल गया, 20,000. सिंपल. एंड द थर्ड पार्टनर दैट इज शर्मा, 68,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 34, इसमें कितना मिला, 18,000 रुपीज़. सो दिस इज योर आंसर फॉर द क्वेश्चन. वी हैव टू जस्ट डिटरमाइन द प्रॉफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टनर्स. तो हमें मिल गया. सिंपल यही एग्जाम्पल है. ओके, होप आपको ये 4 एग्जाम्पल जो मैंने एक्सप्लेन किया वो पता चल गए होंगे. लेट्स स्टार्ट विद द 5th एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 5. अब इस एग्जाम्पल में क्या दिया है, मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 times ऑफ पंड्या वाइल वाजपेयी रिसीव्स द हाफ ऑफ द शेयर ऑफ मेहता. अब ऐसा बोला गया है, मेहता जो है उसको कितना मिल रहा है, पंड्या के सामने 4 times मिल रहा है. मतलब अगर पंड्या को 100 मिल रहा है तो मेहता को कितना मिल रहा है, 400 मिल रहा है. देन वाइल वाजपेयी रिसीव्स हाफ द शेयर ऑफ मेहता, मतलब अगर मेहता को 100 मिल रहा है तो उसका हाफ इसको गिन लो तो 50 इसको मिलेगा. वैसा बोला है एग्जाम्पल में. प्रॉफिट ऑफ द फर्म एट द एंड ऑफ द ईयर इज 87,500. टोटल प्रॉफिट दे दिया है पार्टनर्स का. सो प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर्स इज 87,500 रुपीज़. ये आ गया पहला. और उसके बाद डिटरमाइन द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर. ऐसा सेम एग्जाम्पल हमने किया है इलास्ट्रेशन में, इवन दो आई एम एक्सप्लेनिंग. देख लो. नेम ऑफ द पार्टनर इज, वन इज मेहता, सेकेंड पार्टनर्स नेम इज पंड्या एंड थर्ड पार्टनर्स नेम इज वाजपेयी. अब इसमें क्या बोला है, फर्स्ट लाइन देखो, मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 times ऑफ द पंड्या. अगर पंड्या को हम 1 देंगे तो मेहता को कितना देना पड़ेगा, 4 times. दैट मीन्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 4, तो इस पे क्या आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा. सिंपल है. या तो फिर आप दूसरा एग्जाम्पल ले लो,
अगर हम पंड्या को 100 दे रहे हैं तो मेहता को 4 टाइम्स देना है, तो कितना दे दोगे? 400 दे दोगे। ये भी एक एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। देन सेकेंड लाइन में क्या लिखा है? नेक्स्ट लाइन, वाइल वाजपेयी रिसीव्स हाफ ऑफ हिज शेयर ऑफ दी मेहता। अगर मेहता को 4 मिल रहे हैं तो उसका हाफ किसको मिल रहा है? वाजपेयी को मिल रहा है। तो इसको 4 मिल रहा है तो उसका हाफ कितना हुआ? 50%, 2 हो गया। अगर इसको 400 मिल रहा है तो इसको कितना मिल जाएगा? 200 मिल जाएगा, 200 रुपीज़ मिल जाएगा। सिंपल। ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा 4:1:2। अब इसको हम क्या करना है? टोटल करते हैं। हर बार हम क्या करते हैं? इसका टोटल कर देते हैं। अब इनकेस में से 0 निकाल दो तो आपको यही रेशियो मिल जाएगा 4:1:2। सिंपल है। 4 + 1 दैट इज़ 5, 5 + 2 7, 7 आ गया यहाँ पे। अब जैसे हम हर बार करते हैं वैसे कर देंगे। टोटल शेयर कितने डिवाइड होंगे? 7 में शेयर डिवाइड होंगे। उसमें से 4 कौन ले जाएगा? मेहता ले जाएगा, 1 पंड्या ले जाएगा, और 2 जो है शेयर वो कौन ले जाएगा? वाजपेयी ले जाएगा। तो 4/7, 1/7 और 2/7। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो कि हम होटल में जाते हैं कभी खाने के लिए और हम सूप मंगवाते हैं, तो सूप में क्या करते हैं? 1/2 कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? एक शेयर जो था उसमें से हमने कितने डिवीज़न दे दिए? 2 दे दिए। तो इसमें क्या था टोटल? हमने 4/7 कर दिया। ओके, टोटल 7 का डिवीज़न था, 4 इसको दे दिया, एलोकेशन कर दिया। अब देखो टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म दे दिया है। सिंपल कैलकुलेशन करना है। मेहता, पंड्या एंड वाजपेयी। मेहता को कितना मिलेगा? 87,500 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 7। हियर 87,500 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 7। और वाजपेयी को कितना मिलेगा? 87,500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 7। सिंपल कैलकुलेट कर लो। 87,500 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 7। आंसर क्या आ गया? 50,000 इज योर आंसर। ये सबसे पहले मेहता को कितना रुपीज़ मिल जाएगा प्रॉफिट में? 50,000। सेकेंड, पंड्या को कितना है? 87,500 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 7। कितना मिल गया? 12,500 रुपये। 12,500 रुपीज़ ही विल गेट एज अ प्रॉफिट। नेक्स्ट वन, वाजपेयी 87,500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 7। आंसर आ गया 25,000 रुपीज़। सो अल्टीमेटली ही विल गेट अ शेयर ऑफ रुपीज़ 25,000। अब कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि वेदर माई आंसर इज करेक्ट और नॉट। तो हम क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे? जस्ट डू दिस थिंग, मेक द टोटल ऑफ ऑल 3 ऑफ देम। 50,000 प्लस 12,500 प्लस 25,000। क्या आंसर आया? 87,500। तो यही है ना, इसी को तो हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है अमॉन्ग द पार्टनर्स। तो ये अगर सेम आ गया इन 3 का टोटल, और यहाँ पे अगर टोटल आपका 87,500 हो रहा है, ये दोनों चीज़ें मैच हो रही है, तो आपका आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट है। जस्ट आपको शेयर में अगर आपने कोई गलती नहीं की होगी तो आपको पूरे इसमें से 3 में से 3 मार्क्स मिल जाएंगे। पता चला? सो दिस इज़ योर 5th एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6। क्लियर? अब इस एग्जाम्पल में जैसे मैंने फॉर्मेट ड्रॉ किया, आपको पता चल गया होगा कि किसी ने गलत शेयर दिया है, उसको आपको चेंज करना है। तो ये सिंपल एग्जाम्पल वैसा ही है, समझने की ट्राई करो। फर्स्ट, प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ शीला, सुरभि एंड संकेत। 3 पार्टनर्स आर देयर, तो नाम लिख देंगे शीला, सुरभि एंड संकेत। 3 पार्टनर्स आर देयर। इस पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स। ये हो गया। चलो, उसके बाद इसमें क्या बोल रहे हैं कि देयर प्रॉफिट शेयरिंग एंड देयर प्रॉफिट फॉर द फर्म। प्रॉफिट कितना दिया है टोटल? 1,35,000 रुपीज़। ये जो पूरी फर्म है ये इन द ईयर टोटल कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है? 1,35,000 रुपीज़ प्रॉफिट अर्न कर रही है। नेक्स्ट देखो, दे हैव शेयर्ड द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:3। उन लोगों ने क्या कर दिया है? 2:1:3 के रेशियो में प्रॉफिट का डिवीजन किया है। एंड
इंस्टेड ऑफ 3:2:3, तो इसमें जो एक्चुअली प्रॉफिट शेयरिंग करना था वो कौन से रेशियो में करना था? 3:2:3 रेशियो में करना था। ओके, तो ये जो रेशियो है, दिस वन इज अ रॉन्ग रेशियो। तो इसके अंदर जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो के एंट्री हो गई है, तो ये गलत हो गई। दिस इज योर करेक्ट वन। ओके, दिस इज योर करेक्ट रेशियो। तो हम वैसे ही करेंगे 2:1:3, तो इसका टोटल करो। 2 + 1 दैट मीन्स 3, 3 + 3 इज इक्वल टू 6। तो इसका टोटल क्या आ गया? इसका टोटल आ गया 6 आ गया। हियर यहाँ पे देखो 3:2:3, तो 3 + 2 दैट मीन्स 5 + 3 दैट मीन्स योर टोटल विल बिकम 8। तो इसका शेयर कितने में हो जाएगा? 8। तो 1,35,000 के एक्चुअली 8 शेयर्स होंगे, जिसको डिवाइड हम कौन से रेशियो में करेंगे? 3:2:3 में करेंगे। और ये वाला जो है ये रॉन्ग वाला है, उसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जो चीज़ें जो करेक्ट वैल्यू है वो हम प्लस में लिखेंगे, जो रॉन्ग है वो हम कैसे लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे, जो हमने एग्जाम्पल में एक्चुअली किया हुआ है। इन प्रीवियस एग्जाम्पल वी हैव डन दिस पर्टिकुलर थिंग। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन करेक्ट रेशियो। अब इसमें करेक्ट रेशियो आपका कौन सा है? 3:2:3। ये आपका करेक्ट रेशियो हो गया। टोटल कितना है? 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय व्हाट इज द रेशियो? इज 8। तो पहला आ गया शीला का 50,625 रुपीज़, 50,625। अब ये जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी? प्लस में आएगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्टनर इज सुरभि, 1,35,000, उसका रेशियो कितना है? 2 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 8 हो गया 33,750। तो इसकी भी प्लस में वैल्यू लिख लो, 33,750। नेक्स्ट पार्टनर इज संकेत, सो व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट? 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 8 कितना आ गया? 50,625 रुपीज़। तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा? प्लस 50,625। इसको अगर कैलकुलेट नहीं करने की ज़रूरत थी, क्यों? क्योंकि इसका भी इतना ही तो रेशियो है, सेम लिख देंगे यहाँ पे। तो एग्ज़ाम में क्या करना है, ऐसा टाइम नहीं आपको वेस्ट करना है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो। इसमें एग्जाम्पल में रॉन्ग रेशियो दिया हुआ है 2:1:3, जिसमें हमने गलती से एंट्री कर दी। अब इस टाइम पे आपको क्या याद रखना है, इसमें तो हमने 8 का डिवीजन किया था, इसमें डिवीजन कितने का आ जाएगा? 6 का आ जाएगा। तो कई बार स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि इसका प्रॉपर टोटल नहीं करते, फिर इसमें यहाँ पे आंसर गलत आएगा तो पूरी आपकी एंट्री गलत हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। टोटल इज प्रॉफिट 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय द शेयर ऑफ शीला इज 2, सो 2 डिवाइड बाय टोटल इज 6, 45,000 आ गया। वैल्यू जो आएगी वो किस में आएगी? माइनस में, क्योंकि ये जो एंट्री है वो कौन सी है? गलत वाली। पता चला? नेक्स्ट वन, सुरभि। तो सुरभि का 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय रेशियो कितना है? 1 डिवाइड बाय 6, तो उसको कितना मिलना चाहिए? 22,500 रुपीज़। ये हमने उसको रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, 22,500। नेक्स्ट वन, संकेत। तो संकेत का सेम देख लो, 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 3, उसका रेशियो 3 है, डिवाइड बाय 6, सो आंसर इज 67,500। तो इसको भी क्या मिल जाएगा? माइनस में 67,500। अब सिंपल कैलकुलेशन देखो और इसके हिसाब से सोचो। एक शीला का था टोटल 50,625 का प्रॉफिट उसको मिलना चाहिए था, उसको मिला कितना? 45,000, उसको कम मिला। पता चला? इसको इतना मिलना चाहिए था, उसको कम मिला। इसको कितना मिलना चाहिए था? 50,625 मिलना चाहिए था, उसको एक्चुअली ज़्यादा मिल गया। पता चल गया? अब इसका डिवीजन और ये सब हो गया। अब इसका माइनस करके देखते हैं। 50,625 माइनस
45,000। हमने किसका कैलकुलेशन किया? शीला का। तो हमें कौन सा आंसर मिला है? 5,625। जो वैल्यू है वो प्लस में है। ओके, तो हम लिख देंगे प्लस 5,625। ये आपका पहला आ गया। नेक्स्ट वन सुरभि 33,750 माइनस 22,500। आंसर क्या आ गया? 11,250। इसमें भी वैल्यू कौन सी है? प्लस। तो अगर प्लस वैल्यू है तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे प्लस 11,250। नेक्स्ट थर्ड वन दैट इज संकेत 50,625 माइनस कितना है? 67,500। अब ये देखो, ये वैल्यू जो आई वो कौन सी आई? माइनस में, माइनस 16,875। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 16,875। ये यहाँ पे रफ हो गया, इसको हम फिर से ट्राई करेंगे। 33,750 माइनस 22,500, क्या आंसर आ जाएगा? 11,250। अब यहाँ पे देखो, ये दो चीज़ें हैं वो किस में है? प्लस में है, और ये कौन सी है? माइनस है। जो प्लस वैल्यू है उसको हम दे देंगे क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि उसके अकाउंट में क्या होगा? ये पैसा जमा हो जाएगा। तो जमा होगा, इसके लिए हम क्या दे देंगे? दोनों को क्रेडिट दे देंगे। और डेबिट किसको ले लेंगे? संकेत को डेबिट ले लेंगे। तो सेम हमको फॉर्मेट बनाना है, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, और आगे क्या आएगा? डेट आ जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट में कौन आएगा? संकेत्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। डेबिट बाय रुपीज 16,875 टू शीलाज कैपिटल और करंट अकाउंट। उसमें क्या वैल्यू आ जाएगी? 5,625। और थर्ड क्या आ जाएगा? टू सुरभीज कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट बाय रुपीज 11,250। तो ये आपकी जनरल एंट्री आएंगी। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स. That's all for today. I hope you have seen all the videos which I have uploaded on my YouTube channel Commerce by Pratik Majmudar. Okay, so please like, share and subscribe to the channel. Here I have discussed, in this particular part we have discussed total 6 numbers of example from 1 to 6 from the exercise itself. Okay, that's all for today. Thank you so much. Jai Hind.